السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک سٹوری سناتی ہوں جس کا نام ہے مٹر کا دانہ بڑا سیانا۔ بہت دنوں کا ذکر ہے کہ کاش گھر میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی۔ وہ اتنی ضعیف اور کمزور تھی کہ گھر کا کام کاج بھی بڑی مشکل سے کر سکتی تھی۔ اس کا بوڑھا خامن لکڑیاں کاٹنے کے لیے جنگل میں چلا جاتا۔ بیچاری بوڑھیا دن بھر اکیلی رہتی۔ کبھی کبھی وہ وقت گزارنے کے لیے اپنے آپ سے باتیں کرنے لگتی۔ ایک دن وہ بولی، اولاد بھی خدا کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ کسی نے اس کے کان میں آہستہ سے کہا، کیا آپ کو اولاد کی یہ بہت آرزو ہے؟ بڑھیا بولی، میری تو ساری عمر اس آرزو میں بیت گئی کہ کوئی مجھے ماں کہہ کر پکارتا، لیکن میری یہ آرزو پوری نہ ہوئی۔ پھر کسی نے بہت آہستہ سے کہا، اگر آپ کا ایک بیٹا ہوتا تو آپ کیا کرتی؟ بڑھیا بولی، میں اسے بہت لاڈ پیار سے پالتی۔ جب وہ جوان ہو جاتا تو بہت دھوم دھام سے اس کی شادی کرتی۔ یہ کہہ کر بڑھیا بہت زور سے کہہ مار کر ہنسی اور بولی، یہ لو، گھر میں نہ بیٹا ہے اور نہ بیٹی، اور میں ان کی شادی بیاہ کرنے بیٹھ گئی۔ پھر وہ بولی، یہ آرزو کرتے کرتے میں بوڑھی ہو گئی۔ کسی نے پھر آہستہ سے کہا، اگر خدا کا حکم ہو تو سوکھی ٹھنڈ بھی ہرا بھرا ہو سکتا ہے۔ بڑھیا بولی، ٹھیک ہے، خدا چاہے تو ہر بات ممکن ہو سکتی ہے۔ پھر آواز آئی، اگر خدا آپ کو ایک چھوٹا سا بیٹا عطا فرما دے، بالکل مٹر کے دانے جیسے ننھا منا سا، تو کیا آپ پسند کریں گی؟ بڑھیا بولی، یہ لو، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ اولاد چاہے ٹھنگنی ہو یا بڑے قد کی، ماں باپ کے لیے تو وہ دنیا کی سب سے زیادہ پیاری چیز ہوتی ہے۔ بڑھیا پھر کہہ مار کر ہنسی اور بولی، میں بھی کیسی احکمانہ باتیں سوچتی رہتی ہوں۔ اسی وقت آواز آئی، امی امی۔ بڑھیا نے حیران ہو کر ادھر ادھر دیکھا اور بولی، کون ہے؟ کسی نے زور سے کہا، امی جان، یہ میں ہوں، آپ کا بیٹا، میرا نام ہے مٹر کا دانہ بڑا سیانا۔ بڑھیا نے پوچھا، لیکن تم کہاں ہو؟ مٹر کا دانہ بولا، امی جان، میں اتنا چھوٹا ہوں کہ آپ کو نظر نہیں آ سکتا۔ میں لوگوں کے کانوں میں گھس جاتا ہوں اور وہ جو کچھ سوچتے ہیں میں وہ سن لیتا ہوں۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں آپ کے کان میں سرگوشیاں کر رہا تھا۔ بڑھیا ہنس کر بولی، باتیں تو ہوتی رہیں گی بیٹا، پہلے تم اپنی شکل تو دکھاؤ۔ فوراً ہی جھنگروں کے بولنے یا مکھیوں کے بن بنانے کی آواز سنائی دی اور ایک گرم گرم دانہ بڑھیا کے ہاتھ پر گر پڑا۔ مٹر کا دانہ بولا، لیجیے امی جان، میں حاضر ہوں۔ بڑھیا نے بہت غور سے دیکھا۔ اگر آسمان ٹوٹ کر گر پڑتا تب بھی اسے اتنا تعجب نہ ہوتا۔ مٹر کا دانہ موتی جیسا چمکدار تھا۔ اس کی دو چمکدار آنکھیں تھیں، مکڑی کے جالے جیسے باریک اور پتلے پتلے ہاتھ پاؤں تھے۔ بڑھیا کو اس پر بہت پیار آیا۔ وہ اسے چومنے کے لیے جھکی۔ مٹر کا دانہ چیخ کر بولا، امی امی، ذرا احتیاط سے، ایسا نہ ہو کہ آپ مجھے نگل ہی جائیں۔ بڑھیا نے بہت آہستگی سے مٹر کے دانے کو پیار کیا اور کہا، بیٹا سدا سکھی رہو، تم نے مجھے بہت خوش کیا، خدا تمہیں خوشی بخشے۔ بیٹا یہ تو بتاؤ، کھاتے پیتے کیا ہو؟ مٹر کا دانہ ہنس کر بولا، جب مجھے بھوک لگتی ہے تو میں بادشاہ کے دسترخوان پر پہنچ جاتا ہوں۔ سب لوگ بادشاہ کے سامنے تھر تھر آتے ہیں، لیکن میں ان کا حال دیکھ دیکھ کر ہنستا رہتا ہوں۔ ان کے کان میں گھس جاتا ہوں اور جو کچھ وہ سوچتے ہیں میں وہ سن لیتا ہوں۔ بڑھیا نے حیران ہو کر پوچھا، بیٹا تم تو کافی بڑے ہو، تم ان کے کان میں کیسے گھس سکتے ہو؟ مٹر کا دانہ آہستہ سے ہنس کر بولا، یہ کیا مشکل ہے بھلا، میں سکڑ سمٹ کر رائی کے دانے سے بھی زیادہ چھوٹا ہو جاتا ہوں۔ جب میرا دل چاہتا ہے تو میں ہوا کے ساتھ اڑ کر دور دراز کی سیر کرنے چلا جاتا ہوں۔ بڑھیا نے کہا، تم اپنے ابا جان سے بھی مل کر آؤ، وہ تم سے مل کر بہت خوش ہوں گے۔ مٹر کا دانہ بے تاب ہو کر بولا، امی جان، میں ابا جان سے ملنا چاہتا ہوں، وہ اس وقت کہاں ملیں گے؟ بڑھیا ٹھنڈا سانس بھر کر بولی، بیٹا ہم غریبوں کو گزر بسر کرنے کے لیے بہت محنت مشقت کرنی پڑتی ہے، وہ اس وقت جنگل میں لکڑیاں کاٹ رہے ہوں گے۔ مٹر کا دانہ بولا، میں اب چلتا ہوں، خدا حافظ امی جان۔ یہ کہہ کر مٹر کے دانے نے چھلانگ لگائی اور ہوا کے جھونکے کے ساتھ اڑتا ہوا چلا گیا اور جلدی ہی بوڑھے لکڑہارے کو تلاش کر لیا۔ مٹر کا دانہ اس کے ہاتھ پر بیٹھ گیا اور زور سے بولا، ادھر دیکھیے ابو جان، میں آپ کا بیٹا ہوں، میرا نام ہے مٹر کا دانہ بڑا سیانا۔ بوڑھا مٹر کے دانے سے مل کر بہت خوش ہوا۔ مٹر کا دانہ بولا، ابا جان، آپ میری ڈیل ڈول کو دیکھ کر پریشان نہ ہوں، کیا آپ نے نہیں سنا، جو چیز چھوٹی ہوتی ہے قیمت میں بہت زیادہ ہوتی ہے؟ مثلاً 1 تولہ سونے کی قیمت 1 من لوہے سے زیادہ ہے۔ زمین ہلکے پھل سے بڑی ہوتی ہے، لیکن لوہے کا پھل زمین کا سینہ چیر سکتا ہے۔ درخت کلہاڑی کے مقابلے بہت زیادہ چھوٹا ہوتا ہے، لیکن وہ درخت کو
काट देता है। बादशाह खुश होकर बोला, बेशक मटर के दाने, तुम बड़े सियाने हो। बूढ़ा खुश होकर बोला, वाह, तुम तो बहुत अक्लमंद और समझदार हो। मटर का दाना फख्र से बोला, जी हाँ, इसलिए लोग मुझे मटर का दाना बड़ा सियाना कहते हैं। अब देखिए मैं ज़ैन और लगाम के बगैर कैसे घोड़े की सवारी करता हूँ। बूढ़ा लकड़हारा उसे घोड़े के पास ले गया। मटर का दाना उछलकर घोड़े की पुश्त पर सवार हो गया और ज़ोर ज़ोर से बोला, टक टक टक, चल मेरे घोड़े चल। ये कहकर उसने घोड़े की कमर में ज़ोर से चुटकी ली। घोड़ा उछल पड़ा और इधर उधर दौड़ने भागने लगा। वहाँ से एक ताजिर गुजर रहा तो उसने घोड़े को इधर उधर दौड़ते हुए देखा तो बहुत हैरान हुआ और लकड़हारे से पूछने लगा, बाबा, घोड़े को ये कौन दौड़ा रहा है? टक टक की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं लेकिन कहने वाला दिखाई नहीं दे रहा। बूढ़ा बोला, खुदा ताला ने मुझे मटर के दाने के बराबर फर्जंद अता फरमाया। इसका जिस्म बहुत छोटा है लेकिन अक्ल और दानाई में वो 10 आदमियों पर भारी है। मटर के दाने ने घोड़े को ठहराया और कूदकर बूढ़े लकड़हारे के हाथ पर चढ़ गया। ताजिर इस नन्हे मुन्ने से बोलते हुए मटर के दाने को देखकर बहुत हैरान हुआ। उसने कहा, चचा जान, अगर आप कबूल करें तो मैं इस मटर के दाने के बदले में आपको अशरफियों की एक थैली दे सकता हूँ। मटर का दाना गुस्से से बोला, वाह जी वाह, आपने मेरे बहुत कम दाम लगाए हैं। ताजिर बोला, मैं आपको अशरफियों की 2 थैलियाँ देता हूँ, क्या है मंजूर है? मटर के दाने ने एक छलांग लगाई और बूढ़े के कान में घुस गया और बोला, अब्बा जान, आप मुझे अशरफियों की 20 थैलियों से कम कीमत पर फ़रोख्त ना कीजिएगा। लकड़हारा खामोश रहा। उसे चुप देखकर ताजिर ने कहा, अशरफियों की 10 थैलियाँ कहें, सौदा मंजूर। लकड़हारा बोला, क्या कोई शख्स अपनी औलाद को भी फ़रोख्त किया करता है? ताजिर ने कहा, अशरफियों की 20 थैलियाँ। मटर का दाना बोला, अब्बा जान, कह दीजिए कि सौदा मंजूर है। लकड़हारे ने हाँ कर दी और सौदा तय पा गया। ताजिर ने अशरफियों की 20 थैलियाँ लकड़हारे के हवाले की और मटर के दाने के साथ लेकर चलने लगा। दाना बोला, अब्बा जान, फिक्र न कीजिएगा, मैं जल्द ही आपके पास वापस आ जाऊंगा, खुदा हाफिज़। ताजिर दरबार में पहुंचे। इस वक्त बादशाह अपने दरबारियों, अमीरों और वज़ीरों के साथ मुल्क के हालात पर गुफ्तगू कर रहा था। ताजिर ने कहा, आली जा, मैं एक बहुत ही नादिर चीज़ आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। ये लड़का है जिसका कद मटर के दाने के बराबर है। बादशाह तख्त से उठकर खड़ा हो गया। मुल्क के दानिशमंद वज़ीरों ने इनकार में सर हिलाया और बोले, नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। वज़ीर ने कहा, आली जां, नामुमकिन, बिल्कुल नामुमकिन। दुनिया की किसी किताब में इतने छोटे कद वाले लड़के का जिक्र नहीं। मटर का दाना छलांग मारकर मेज़ पर आया और बोला, हाथ कंगन को आरसी किया, लीजिए, मैं आपके सामने हाजिर हूँ। अब बताइए, इस हकीकत को कौन झुठला सकता है? सब दरबारी मटर के दाने को देखकर हैरत और ताजुब से देखने लगे। मटर के दाने ने एक छलांग लगाई और बादशाह के हाथ पर चढ़ गया। वो बोला, सरकार, जो कीमत में कम होती है वो कीमत में ज़्यादा होती है। खुदा का शुक्र है, मैं सबसे आला जगह यानी आपके मुबारक हाथ पर बैठा हुआ हूँ। बादशाह खुश होकर बोला, बेशक मटर के दाने, तुम बड़े सियाने हो। बादशाह ने बूढ़ी को हुक्म दिया कि मटर के दाने के लिए एक छोटा सा महल बनाया जाए जो खालिस सोने का हो और उसमें मखमल और रेशम के गद्दे बिछे हुए हों। अब बादशाह ने मटर के दाने को मेज़ पर रखा। मटर को दिल लगी सूझी। उसने सोचा कि बादशाह के वज़ीरों के ख़यालात मालूम करने चाहिए। वो शुक्र से मटकर और छोटा हो गया। फिर वो उड़कर एक वज़ीर के कान में घुस गया और उसके ख़यालों को सुनने लगा। वो वज़ीर सोच रहा था कि बादशाह की नाक बहुत लंबी है। मटर का दाना वहाँ से निकलकर दूसरे वज़ीर के कान में घुस गया। ये वज़ीर बादशाह का ज़ाती मौलिज हकीम भी था। ये वज़ीर भी बहस में हिस्सा लेने के बजाय अपने ख़यालात में गुम था। वो सोच रहा था कि अगर बादशाह बीमार हो जाए तो मैं इलाज के मुआवजे में हीरो की अंगूठी तलब करूँगा। एक वज़ीर सोच रहा था कि बादशाह का तख्त बहुत खूबसूरत है। सिर्फ एक वज़ीर पूरी तवज्जो से बादशाह की गुफ्तगू सुन रहा था। अब मटर का दाना बादशाह के कान में जा घुसा और बताने लगा कि कौन इस वक्त क्या सोच रहा है। गुस्से के मारे बादशाह का बुरा हाल हो गया। वो चीख कर बोला, मैं खूब समझता हूँ कि तुम में से कोई शख्सियत सल्तनत के कामों में दिलचस्पी नहीं रखता। वो पहले वज़ीर की तरह मुड़कर बोला, बेवकूफ़ शख्स, दूसरों की ऐब निकालने का बजाय अपने गिरेबान में मुँह डाल कर देखो। ना मैं अपनी नाक छोटी कर सकता हूँ और ना तुम अपनी नाक बड़ी कर सकते हो। वज़ीर थर थर कांपता हुआ बादशाह के कदमों में गिर पड़ा। अब बादशाह ज़ाती मौलिद से बोला, लालची इंसान, तुम इस फिक्र में हो कि लोग बीमार पड़े और तुम्हारा कारोबार चमके। तुम लोगों का इलाज करने के बजाय उनकी खाल उतारते हो।
बादशाह अब तीसरे वजीर से मुखातिब हुआ। जो अपने आप को अक्लमंद समझता है वही सबसे बड़ा बेवकूफ़ होता है। फिर बादशाह चौथे वजीर से बोला, तुम समझते हो कि ये तख्त बहुत खूबसूरत है? काश तुम जानते कि ऊपर से खूबसूरत और दिल फरेब नज़र आने वाली चीज़ें अंदर से इतनी ही बदसूरत और मकरवा होती है। बादशाह की आवाज़ ऊंची होती चली गई। मैंने तुम्हारे ख्यालात को तुम्हारे सामने बयान कर दिया। कभी तुमने अपने गिरेबान में मुंह डालकर देखा? लेकिन तुम्हें तो सैर व तफरीह, ऐशो इशरत और सोना चांदी जमा करने से फुर्सत ही कहाँ मिलती होगी। अगर लोगों को तुम्हारे करतूतों का इल्म हो जाए तो वो तुम्हें खींच कर नीचे गिरा देंगे। अब दिन रात बादशाह को ये फ़िक्र सताने लगी कि उसके सब वज़ीर बहुत निकम्मे और काम चोर हैं। वो सल्तनत के मामलात पर तवज्जो देने के बजाय अपने कामों में मसरूफ़ रहते हैं। आखिर एक दिन उसने सब वज़ीरों को बरतरफ कर दिया और ऐसे लोगों को वज़ीर बनाया जो होशियार और मेहनती थे। जो ही नए वज़ीरों को इख्तियार मिला वो पुर्ज़ल निकालने लगे। उन्होंने खुफिया तौर पर बादशाह के ख़िलाफ़ साजिश की और आखिर एक दिन उसे तख्त व ताज से महरूम करके काशगौर से निकाल दिया। बादशाह ने रोते हुए अपने महल पर आखिरी नज़र डाली। मटर का दाना बोला, आली जहाँ, जो हो चुका उस पर रोने धोने और आंसू बहाने से क्या हासिल। अब आप सब्र करें और मुसीबतों का बहादुरी से मुकाबला करें। बादशाह बोला, मटर के दाने, मैं अफवाह क्यों ना करूं? मेरा शाही असा जाता रहा। मटर का दाना बोला, सब्र कीजिए और सामने दरख्त से एक शाख काट लीजिए। आपका शाही असा बहुत वजनी था, ये हल्के फुल्की छड़ी इसके मुकाबले में बेहतर है। बादशाह आंसू पोंछकर बोला, मटर के दाने में क्यों ना आंसू बहाऊं? मेरा शाही तक छिन गया। मटर का दाना बोला, सब्र कीजिए हुजूर, आप घास के गिट्टे पर बैठ जाएं। आप घास के गट्ठे पर बैठ जाएं। अब फरमाइए सरकार, ये आपके ठोस तख्त के मुकाबले में नरम और मुलायम है या नहीं? और घास की ताज़ा ताज़ा महक, सुबहान अल्लाह, किसी इत्र में भी ऐसी खुशबू नहीं है। बादशाह ने कहा, मैं अपने ताज से महरूम हो गया हूँ। मेरा वो सोने का ताज छिन गया जिसमें मैं पेश कीमत हीरे जुड़े हुए हैं। मटर का दाना बोला, आली जान, सब्र कीजिए, वो सामने मेहंदी की बाड़ है। एक शाख तोड़कर घेरा बना लीजिए और सर पर पहन लीजिए। अब फरमाइए, सर का वो भारी ताज बेहतर है या ये नरम और नाजुक घेरा? आली जान, जो चीज़ें जा चुकी उनका गम करने से क्या फ़ायदा? बादशाह ने एक ठंडा सांस भरा और बोला, मटर के दाने, शायद तुम ठीक ही कहते हो। अब हमें सब्र ही करना चाहिए। बादशाह को अपनी मौजूदा हालत पर सब्र और करार आ ही गया। अब वो गाँव फिरने लगा ताकि लोगों का हाल मालूम कर सके। उसे नई नई बातें मालूम हुई। एक दिन उसने देखा कि एक जालिम आदमी एक शख्स को कूड़े मार रहा है और वो चीख चीख कर फरियाद कर रहा है। बादशाह ने पूछा, क्यों नहीं सुनता कोई इस मजलूम शख्स की फरियाद, क्यों नहीं सुनता? मटर के दाने ने कहा, इसकी वजह यह है कि बादशाह बहरा है, वो लोगों की फरियाद सुनने से कासिर है। बादशाह ने बहुत से लोगों को देखा जो नंगे पाँव थे, उनके कपड़े भी मैले कुचैले और फटे हुए थे। उसने पूछा, कोई क्यों नहीं सुनता? ये लोग ऐसे खस्ता हाल में क्यों हैं? मटर का दाना बोला, क्यों नहीं सुनता है, इसकी वजह यह है कि बादशाह अंधा है, वो इनकी हालत नहीं देख सकता। बादशाह ने लोगों को देखा जो सूखी हुई रोटियां पानी में भिगो कर खा रहे थे। इसने पूछा, कोई क्यों नहीं सुनता, ये लोग सूखी रोटियां क्यों खाते हैं? मटर का दाना बोला, सरकार, जब बादशाह और उसके मसाइब साथी तरने वाले खाएंगे तो इन गरीबों को रूखी सूखी रोटी भी मिल जाए तो बहुत है। बादशाह ने देखा कि लोग दिन रात मेहनत मुशक्क़त करते हैं और थकन से उनका हाल बहुत ख़राब हो रहा है। उसने पूछा, ये लोग इतनी सख्त मेहनत क्यों करते हैं? मटर का दाना बोला, ये लोग काम करने पर मजबूर हैं। जब बादशाह ऐशो इशरत में पड़ जाए तो रियाया में बदहाली और गरीबी बढ़ जाती है। बादशाह ने हैरान होकर पूछा, इन लोगों ने मुझे तख्त ताज से बेदखल करके ऐसा बादशाह मुंतखब क्यों किया जो अंधा और बहरा है, ऐशो इशरत में डूबा हुआ है और अपनी राया के हाल से बेखबर है? मटर का दाना बोला, बादशाह बनने से पहले ये शख्स सुन भी सकता था और आम लोगों की तरह रहता था। बादशाह बनने के बाद अक्सर लोग अंधे, बहरे और बेखबर हो जाते हैं। ये सुनकर बादशाह बोला, मटर का दाना, तुम्हारी बातें सुनकर मेरी आंखें खुल गईं। तुमने मुझे वो नसीहत की है जो मैं उम्र भर ना भूलूंगा। अगर मैं दोबारा बादशाह बन गया तो लोगों का ख्याल रखूँगा। अभी बादशाह ये बातें कर ही रहा था कि घुड़सवारों का एक दस्ता अधरा निकला। उनके सरदार ने बादशाह को पहचान लिया। वो घोड़े से नीचे उतरा और बादशाह के हाथ चूमकर बोला, आली जान, लोगों ने मौजूदा बादशाह के खिलाफ बगावत कर दी। बादशाह उसके वज़ीर और दरबारियों को कैद कर लिया है। हुजूर, आपका तख्त खाली पड़ा है और लोग आपकी वापसी के मुंतज़िर हैं। सब लोग बहुत इज्जत और एहतराम से बादशाह को अपने साथ ले गए और उन्होंने बादशाह को तख्त पर बिठा दिया। मटर के दाने ने बादशाह के कान में कहा, सरकार,
کیا آپ سن سکتے ہیں؟ کیا آپ دیکھ سکتے ہیں اور حالات کو سمجھ سکتے ہیں؟ یا پھر آپ بھی ہر بات سے بے خبر ہو گئے؟ بادشاہ ہنس کر بولا، اے سیانے مٹر کے دانے، میں اب پوری طرح ہوش و حواس میں ہوں۔ مٹر بولا، عالی جاں، اگر آپ نے لوگوں سے ذرا بھی غفلت برتی تو یہ آپ کو پھر تخت و تاج سے بے دخل کر دیں گے۔ یہ میری آخری نصیحت ہے کہ آپ لوگوں کی ضرورت کا پورا خیال رکھیں۔ یہ کہہ کر مٹر کا دانہ ذرا دیر کے لیے چپ ہو گیا، پھر وہ بولا، سرکار اب میں چلتا ہوں، میری بوڑھی ماں اور میرا باپ میرا رستہ دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ کہہ کر وہ ہوا میں تیرتا ہوا محل سے باہر نکل گیا۔ امید ہے آپ کو میری یہ اسٹوری پسند آئی ہوگی۔ تھینک یو۔